creative director of Shrika. As you know, I have a background in fashion, right? So fashion and colors is something which is in my blood. So as growing up, I used to accompany my mother to Surya saris, wherein I used to play with material, collect it. And as a kid, I used to just put it on birthday cards. You know, that is where the fascination started. And slowly and gradually, after completing my bachelor's in fashion designing, I found my passion in Indian crafts and Indian textiles. And I really found my passion that I want to take it forward in a way that I want to take it to a very global level, and take it to an international level. And that is where I planned on contemporizing the Indian traditional techniques while keeping the essence intact, wherein we can involve as many artisans and showcase all the craftsmanship we have in the collection. So that is the idea behind it, to create wearable art. And that's it. So Shrika is an Indian contemporary brand focusing on wearable art in the luxury segment, and it's a couture brand. Anushri, she speaks about crafts. So actually, the foundations of our company Surya has been since 1960. So our great grandfather, when he founded the company, the inception of it back in the time, and it's a privilege, honestly, that even in today's time we are able to uphold the craftsmen and also the weavers that actually joined with us since the early 1960s. And I think the weavers also, they've also crossed generations. So some of the weaver families, it's their second and third generations, and it's a privilege for us because me, Anushri, she's my sister, so both of us being the fourth generation and actually interacting with the multiple generations of the weavers and the craftsmen, we just really hope that we can create a call for many more such people who can actually give more work to these weavers, to these craftsmen, and actually sustain them and give them a platform that can actually give them the right value. Like their hands, they are actually worth something. And I think Raghvas and Shrika, it's an expression of that. स्पेशल क्या है? स्पेशल देखिए, स्पेशल तो अपने आप में मैं बोलूँगा कि हमारा एक एक पीस अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि सबसे पहले तो वो बहुत हैंड क्राफ्टेड है. आज के टाइम में जहाँ मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ गई है, मशीनरी की जनरेशन में हम लोग हैं, तो उन हाथों को आज भी काम देना वो अपने आप में बहुत स्पेशल है. तो एक एक पीस जो हम लोग बना रहे हैं, एक एक पीस जो श्रीका का कोई पहनेगा या राघवास का कोई पहनेगा, वो उनमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब जो उसका कपड़ा है वो भी हाथ से बुना हुआ है, और उसके ऊपर जो काम हो रहा है, कढ़ाई हो रही है, वो भी हाथ से हो रही है. तो उसकी वजह से वो बहुत स्पेशल है अपने आप में. नंबर 2 वो कुट्योर है. कुट्योर के अंदर मतलब हम लोग कस्टमर को या फिर जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी पहनना चाहता है, जिसको स्टाइल कर रहे हैं, उसको समझ के उसके टेस्ट के हिसाब से, उसके मेजरमेंट्स और उसके फिट के हिसाब से बना रहे हैं. तो स्पेशल है कि आप जब पहनते हो जो आपके लिए बना है. फैशन एक एक्सप्रेशन है, एंड आई थिंक आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो जब आप कुछ पहन रहे हो. ऐसा स्पेशल आपका जो है कि ब्रांड से आप ज़्यादा जो है कि फेम हुआ या मतलब ज़्यादा स्पेशल है, वो थोड़ा सा शेयर करना. देखिए, स्पेशल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक तो मैं बोलूँगा ये चीज़ हमारे खून में है. तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम कहीं ना कहीं जो चीज़ हमने बचपन से अपने सामने देखी है, अब हम अपने करियर लाइफ में, मतलब मैंने अपना करियर हम लोग अपने बहुत अर्ली ईयर्स में है, तो हम इस समय इन चीज़ों को बिल्ड कर पा रहे हैं स्टार्टिंग से, और ये रिलेशनशिप अपना इंडस्ट्री में और नेटवर्क को अपहोल्ड कर पा रहे हैं, जो कि फर्दर लेवल पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को प्रेजेंट करेगा. और हम लोग को बिज़नेस तो देखिए अपने आप में है ही, बट बिज़नेस से ज़्यादा जो हम एक्चुअली एक कॉज के लिए जो कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं, एंड कॉज से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि जो चीज़ हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो प्लेटफॉर्म हम लोग दे पाएँ, वो चीज़ है मेनली जो. सो विद श्रीका I truly take research, and as I mentioned, it's about wearable art. So like for example, this collection, the inspiration is chins. So me as a designer, I did my research. मैंने समझा कि chins क्या है. Chins हमारा वैसे एक Indian painted textile है जो 13th century से है, and chins actually globally बहुत famous है furnitures में, textiles में. So I understood chins क्या है, what makes chins. Then I derived artworks from it being wearable art. Then what makes it very special is that I sit with my artisans, मेरा खाके वाला, तो उनसे हमने खाके बनवाए, फिर उसको हमने ट्रांसलेट किया अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज में. So this process itself is the USP, because how I interpret chins and what I draw as artworks is a very unique interpretation of chins.
मैंने अपना सारे कारीगरों का हायरिंग से लेके सब कुछ मैंने पर्सनली किया, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको हर चीज़ में इन्वॉल्व होना है खुद के लिए. सो फॉर मी द जर्नी वॉज वेरी न्यू, एक्साइटिंग. चैलेंजेस बहुत चैलेंजेस थे, बट हमें पापा शुरू से कहते हैं कि स्वर्ग ना खुद ही मर के मिलता है. सो दैट इज समथिंग दैट जस्ट कीप्स मी गोइंग कि खुद ही मरना, यू नो, लाइक दैट. बट यार वेरी टफ जर्नी, बट मतलब किसी और के मरने से आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता. बिल्कुल. तो फिर लाइक लुकिंग बैक आई फील रियली एक्साइटेड, बट अगर डे बाय डे शी इज वेरी हैंड्स ऑन विद हर वर्क, आई वुड से. USP definitely the creations. Again, the process of creating Raghavas का piece is very different because Raghavas का focus is bridal. ब्राइडल का मतलब फैशन इंडस्ट्री में इंडिया में खासकर जो ग्लैमर है ना वो कहीं और नहीं है. मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन फैशन इंडस्ट्री, मेरा इंटरप्रिटेशन जो बचपन से रहा है, मुझे ब्राइडल दिखता है हमेशा से. तो इवन दो मतलब बहुत डिफरेंट लग सकता है, लेकिन मुझे ना ब्राइडल के अलावा कभी इंटरेस्ट ही नहीं बना. मतलब मेरा था यार लहंगे, तो मैंने ब्राइडल लहंगों का जो प्रोसेस है वो हमने USP एक हमने क्या क्रिएट करी अपने आप में. हमने जो डिज़ाइनिंग के सेगमेंट को पकड़ा है, जिस तरह के हमने मोटिव्स को यूज़ किया है, जो हमने खाके का लैंग्वेज यूज़ किया है, वो एक USP है. एंड द कलर स्कीम. उसके साथ साथ मैं एक मेजर USP ये बोलूँगा कि डिस्पाइट बीइंग अ डिज़ाइनर लेबल, राघवास ने अपने आप में हमने एक बहुत वैरायटी ऑफ क्रिएशंस को प्रेजेंट कर रखा है. सो आई फील एंड हमारा फोकस साड़ीज़ में भी है. मेरा एक बहुत अच्छा USP है कि मेरी ना आई पर्सनली फील दैट आई हैव अ पर्सनल पैशन फॉर वीविंग एज वेल एज एम्ब्रॉयडरी. सो इट्स वेरी डिफरेंट. लाइक समवन हु अंडरस्टैंड्स द टेक्निकलिटीज़ वुड नो दैट वीविंग अपने आप में इतनी डेप्थ की चीज़ है, और वीविंग के अंदर इतने सारे क्लस्टर्स हैं, और मतलब मैं पर्सनली 6 से 7 क्लस्टर्स से खुद जुड़ा हुआ हूँ डायरेक्टली. तो उसके अंदर एक बहुत डेप्थ की टेक्निकल नॉलेज है. तो मैं उनको अपने कलेक्शन के अंदर विद 5 एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर्स, सो 7 वीविंग क्लस्टर्स एंड 5 एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर्स, हम इनको इन्फ्यूज़ करके कलेक्शंस बना पा रहे हैं. जो एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव बिकॉज समवेयर व्हाट माई फादर एंड the legacy that they have created, their relations with the weavers, we were able to leverage it in a very short time and we were able to create something magical. हम शूज़ है ना वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो जो भी चीज़ है जेन्युइन प्रोडक्ट को कॉस्टिंग के हिसाब से बना के और एक सही प्राइस में प्रेजेंट करें हमेशा. मतलब हमारा शुरू से ये सोचना रहा है कि हम लेटेस्ट डिज़ाइंस बेस्ट क्वालिटी इन रिजनेबल प्राइस में हम कस्टमर तक पहुँचाएँ. तो डिस्काउंट बोल के एक खाली उसको ऊपर नीचे ही करने वाली बात है, तो उसको हमने कभी प्रमोट नहीं किया. Actually, with House of Surya also we have a no discount policy, and what's very interesting is that we started our retail journey from चांदनी चौक. मतलब हमारा चांदनी चौक में स्टोर था, और इतना इंटरेस्टिंग था कि 2001 में जब हमने अपना रिटेल, जब हमने कंज्यूमर डीलिंग शुरू करी, तो उस टाइम पे ना चांदनी चौक में ऑब्वियसली इट्स अ बार्गेन मार्केट इवन टुडे 90% ऑफ द मार्केट. एंड उस टाइम पे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि यार फिक्स प्राइस रिटेल चांदनी चौक में, दैट्स हाउ द कस्टमर यूज्ड टू रिएक्ट. एंड दैट्स समथिंग कि वो एक पॉलिसी, वो एक वैल्यू सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा और उसी पे वर्क किया. तो धीरे धीरे कस्टमर ने जेन्युइननेस समझी, प्राइस को समझा, कस्टमर कंपेयर्स, कस्टमर डिस्कवर करता है. एंड हम लोगों को कभी ऑनेस्टली डिस्काउंटिंग माइंड में नहीं आई. कॉस्ट वगैरह कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक मतलब मैक्सिमम है? देखिए, फॉर हाउस ऑफ सूर्या अगर हम बात करें, हाउस ऑफ सूर्या का जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर है, इसमें हमने एक बहुत वाइड वैरायटी रखी हुई है अपने पास. इफ़ यू टॉक अबाउट आवर गिफ्टिंग रेंज, इट स्टार्ट साड़ीज़ टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 995 एंड दे गो, साड़ीज़ का कलेक्शन दे गो अप टू 70, 75,000, 80,000 अगर मैं हायर प्राइस पॉइंट्स की बात करूँ. देन इन टर्म्स ऑफ ब्राइडल लहंगाज, आर एंट्री लेवल प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अबाउट 20,000. हमारा कोर प्राइसिंग 50,000 से 1.5 लाख के बीच में, और हमारे पास कुछ अपने हैवी डिज़ाइनर एस्पिरेशनल पीसेस 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में. तो इस तरह से हमारा कुछ प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ लेवल पे बताऊँ. बट नाउ ऑनेस्टली as we are actually discovering our journey, we see the demand in the market, and yes, we are hoping to open stores in the local. ब्राइडल शॉपिंग की जर्नी हमेशा ब्राइडल लहंगे से ही शुरू होती है, तो हम लोग ना लहंगे पे फोकस रखते हैं. एंड when the customer discovers our lehengas, when the customer has built a relationship, ब्राइडल लहंगा तो बहुत बड़ा यार मैं मानता हूँ सौभाग्य हमारे लिए कि किसी, बिकॉज अ गर्ल विल चूज़ हर लहंगा वंस इन अ लाइफ, एंड इफ़ आई एम द प्रिविलेज स्टोर, नो मैटर द प्राइस पॉइंट, इफ़ शी हैज़ चोजन मी फॉर दैट, नथिंग, आई एम द मोस्ट स्पेशल ब्रांड. और उसको दादी बनने तक उस लहंगे को याद रखती हो. हाँ, मतलब नाउ वी आर सर्विंग सेकंड, थर्ड जनरेशन ऑफ ब्राइड्स आल्सो, सो इट्स वेरी स्पेशल. आई हैव अटेंडेड एंड आई हैव catered to many second generation of brides जिनकी मदर्स को
एक टाइम पे हमारी टीम्स ने, हमारे पापा ने या किसी चाचा ने या किसी ने लहंगा दिया था, और अब मतलब मैं उनकी बेटियों को लहंगा दे रहा हूँ। ये सब आप ना रेप्लिकेशन को नहीं रोक सकते हो मार्केट में। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेंड सेटर हो, और ये इंडियन फैशन मार्केट की बात नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे है। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी कमर्शियल ब्रांड, दे समवेयर, जो भी हाई स्ट्रीट ब्रांड है इंटरनेशनल लेवल पे, आई वोंट नेम एनी, बट वो हमेशा लुक फॉरवर्ड करता है लग्जरी ब्रांड्स को। वो हमेशा ट्रेंड्स ऑलवेज ट्रिकल डाउन। आई फील लाइक कि जो लग्जरी कार में फीचर है यार, वो नेक्स्ट टाइम पे आपको एक कमर्शियल सेगमेंट में चाहिए, और वो शायद नेक्स्ट टाइम पे यू वुड वांट कि यार स्कूटर में या बाइक में भी आ जाए। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड ट्रिकल डाउन होता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे, एंड दैट्स द नेचर ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर एवर इनोवेशन हैपन्स। दैट्स वाई वो कहते हैं ना 2% ऑफ द पीपल आर इनोवेटर्स। तो वो इनोवेट तो वही होगा, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करेगा, वो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। पर आप अपने एंड से क्या कर सकते हो, आई फील लाइक कि यू ऑलवेज ट्राई एंड डेवलप डिफरेंट एलिमेंट्स। हैंड क्रिएशंस के अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं जो मशीन्स नहीं रेप्लिकेट कर सकती हैं, और वो अपने आप में चीज़ें दिखती हैं कंज्यूमर को। एक आज हैंड एम्ब्रॉयडरी का टाका है, वो अलग से दिखता है। सो Gaurika. So it's actually the amalgamation of the bond between the two sisters, and also so my sister is 10 years younger than me. So the idea is to also dress all age groups, and the tagline is actually an amalgamation of art and design. So it's the bond between the art and design, making it wearable art. मैसेज सूर्या की तरफ से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं 30 ईयर्स से बिज़नेस कर रहा हूँ, और मेरे दादाजी ने शुरू किया था। 62 साल से हम लोग 3 जनरेशन से काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसलिए हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इस जर्नी में बहुत एक्सपीरियंस भी लिया, और हम अपने कस्टमर को वैल्यू के साथ बहुत, मतलब हम बहुत हैप्पी हैं। लोगों के साथ काम के साथ साथ हम एक रिलेशन को बहुत बिल्ड कर पाए। लोगों की ब्लेसिंग बहुत हमारे परिवार के साथ है, और हमारे काम को लोग मतलब बहुत लव करते हैं। और अब हमारी चौथी जनरेशन भी, ये दोनों बच्चे मेरे आज नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये लोग उसी हमारी लेगेसी को और नए तरीके से आगे की जनरेशन के टेस्ट को समझते हुए ये आज इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इसी तरीके से हमारे परिवार की जो लेगेसी है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी, ऐसा ही मेरा विश्वास है।